Hello students. So in the previous lecture we did talk about different patterns of photosynthesis. Okay, we did talk about the C2 pathway, C3 pathway. We did talk about the C4 pathway. Okay, and we did talk about the CAM pathway. Okay, so in this lecture we would be talking about what are the factors that affect the photosynthesis. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो photosynthesis को affect करती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई है. सो नाउ विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सो फैक्टर्स की अगर बात करें there are internal factors as well as external factors that affect the photosynthesis. So internal and external. Internal factors and external factors, they affect the rate of photosynthesis. So internal factors की अगर मैं बात करता हूँ, so we have number, size, age, orientation of leaves. Number, size, age and orientation of leaves. So this plays a very important role कि यार कितने लीव्स अवेलेबल है. ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, तो कितने लीव्स अवेलेबल है. साइज क्या है, बड़े लीव्स है, ब्रॉड लीव्स तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, छोटे लीव्स है तो कम फोटोसिंथेसिस होगा. एज, इफ द लीव्स हैव बिकम ओल्ड, सेनेसेंस हो रहा है तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाएगा. प्लस द ओरिएंटेशन, उनका अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर ट्री के ऊपर किस तरीके से, आर दे एक्सपोज टू सनलाइट और दे आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. बिकॉज अगर सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है, एक लीफ है उसके ऊपर दूसरा लीफ आ जाता है तो नीचे वाला लीफ कवर हो जाएगा, तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी ठीक से, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. तो ओरिएंटेशन, एज, साइज एंड नंबर ऑफ लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. दूसरी बात, मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल भी है. देन वी हैव क्लोरोफिल अमाउंट. ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इवेंट. ठीक है, जितने भी इंटरनल फैक्टर्स यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओके, दे आर एक्चुअली द जेनेटिक मेकअप. जितने भी इंटरनल पॉइंट्स है यहां पे, they are the outcome of the genetic makeup of the plant. Genetic makeup of plant and growth of plant. है ना. इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पीछे कौन डिपेंडेंट है, मेरा डीएनए डिपेंडेंट है ना. तो यहाँ पे जो नंबर है, साइज है, एज है, ओरिएंटेशन है लीव्स के, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इफ द डीएनए कोड्स फॉर 10 लीव्स, तो उस पर्टिकुलर प्लांट में, ट्री में 10 लीव्स ही ग्रो करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, सो इंटरनल फैक्टर्स आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट. What about the external factors? तो external factors की बात करते हैं. So external factors में I can put it as water, light, CO2 and temperature. So these four are the external factors. There's no genetics related to it. But यहाँ पे जो factors है उसके पीछे जो चीज related है वो है genetic makeup. ठीक है? So factors affecting photosynthesis, I hope this is clear. So now let's talk about Blackman's law of limiting factors. See, photosynthesis is governed by और is controlled by many factors. यहाँ पे factors है
यहाँ पे 4 फैक्टर्स है. देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर गवर्निंग द फोटोसिंथेसिस, विच आर कॉजिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चीज याद रखनी है दैट इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. Blackman's law of limiting factor. Limiting factor. ठीक है, so according to the Blackman, the law of limiting factor states that if an event is governed by many factors, by multiple factors, जैसे कि photosynthesis is an event and it is governed by many factors, the rate of photosynthesis would depend, or the rate is going to be determined by the factor present in its minimal amount. Because photosynthesis is governed by many factors, तो जो photosynthetic rate है उसको कौन govern करेगा? It is going to be governed by the factor which is available in the minimum amount. ठीक है? So I'll put it here. When a chemical process is affected by more than one factor, the rate is determined by the factor present, the rate of the chemical process. Is determined by the factor present in its minimal value. Factor present in its minimal value. ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जो एक रिएक्शन है, अगर उसको काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इट इज गवर्न बाय मेनी फैक्टर्स, तो फोटोसिंथेसिस का रेट किस पर डिपेंड करेगा? उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो सबसे मिनिमम अमाउंट में, जिसका वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम है. तो यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है, व्हेन अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस or the rate of chemical process is determined by factor present in its minimal value. Okay, so this is the Blackman's law of limiting factor. Okay, so let's talk about the external factors. Okay, and let's talk about, are they limiting factors or not? Water limiting factor है, sunlight limiting factor है कि नहीं? So let's check it out. So let's talk about light first. So let's plot a graph. ठीक है, so if I talk about let's say this is light intensity, ठीक है, and this is rate of photosynthesis. यहाँ पे rate of photosynthesis, this is light intensity, this is rate of photosynthesis. So if I plot a graph, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे the amount of CO2 used and the amount of CO2 released is going to be the same.
वी टर्म इट एज द कंपेंसेशन पॉइंट. सो फोटोसिंथेटिक रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सो देयर वुड बी अ पॉइंट जब क्या होगा, द CO2 रिलीज एंड CO2 यूज आर गोइंग टू बी सेम. दैट इज टर्म्ड एज द कंपेंसेशन पॉइंट. अगर उस कंपेंसेशन पॉइंट से भी अगर आप ज्यादा सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, इफ द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड इट वुड बिकम मैक्सिमम. Okay, it is going to increase and it is going to become maximum. ठीक है. So this one is the compensation point. और compensation point से भी अगर आप ज्यादा लाइट प्रोवाइड करते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो, तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. या फिर वी कैन आल्सो टर्म इट एज, जैसे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज कंपेंसेशन पॉइंट. This point is termed as the compensation point. This point can be termed as saturation point. This is going to be termed as saturation point. ठीक है, बिकॉज यहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है. बट अब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या सैचुरेशन पॉइंट से भी अगर आप ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो कम हो जाएगा. द फोटोसिंथेटिक रेट इज गोइंग टू डिक्रीज, इट्स गोइंग टू फॉल डाउन. ठीक है, क्यों, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कॉज व्हाट, दिस इज गोइंग टू कॉज फोटो ऑक्सीडेशन. अगर लाइट की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो ये क्या कॉज करेगा, फोटो ऑक्सीडेशन कॉज करेगा. फोटो ऑक्सीडेशन आपने पढ़ रखा है पहले, ठीक है. फोटो रेस्पिरेशन भी कॉज कर सकता है. समझ में आया आपको, बिकॉज सैचुरेशन पॉइंट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है. अगर उससे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स पुट इट डाउन. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करता हूं तो आपको याद है 10% ऑफ फुल सनलाइट इज रिक्वायर्ड, ओनली 10%. ओनली 10% ऑफ sunlight is required for maximum photosynthesis. Only 10%, ठीक है, of sunlight is required for maximum photosynthesis. ठीक है, so light can rarely be considered as a limiting factor क्योंकि 10% of this sunlight is only used. So it is rarely light is rarely a limiting factor because only 10% of the light of the sunlight is going to be used for the maximum photosynthesis. photosynthesis नहीं बोल रहा मैं, maximum photosynthesis बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर now अगर इफ यू टॉक अबाउट डेंस फॉरेस्ट, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर लीफ है, उस लीफ के ऊपर दूसरे लीव्स आ जाते हैं या दूसरे प्लांट के लीव्स आ जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर लीफ को फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगी. तो उस केस में इफ यू टॉक अबाउट डेंस फॉरेस्ट जहां पे काफी सारे ट्रीज है, तो जो प्लांट्स नीचे है जिनकी लेंथ कम है और जो बड़े ट्रीज है जो उनको कवर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो बड़े ट्रीज है वो क्या कर लेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे बिकॉज दे वुड बी गेटिंग अबंडेंट ऑफ लाइट. बट बिकॉज ऑफ द लीफ कैनोपी, उनके लीफ क्या कर रहे हैं, नीचे वाले प्लांट्स को कवर कर रहे हैं. तो जो नीचे वाले प्लांट्स है उनको लीव्स को सनलाइट नहीं मिल पाएगी और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. सो लाइट को आप लिमिटिंग फैक्टर कंसिडर कर सकते हो इन अ डेंस फॉरेस्ट, नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन. सो यहां पे लिखते हैं
light can be considered as limiting factor. Light can be considered as limiting factor in dense forest. Light can be considered as limiting factors in dense forest, not in a regular condition. ठीक है, सिंपल एंड इजी. फिर क्या मैंने बोला, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन. ओके, विच इज टर्म्ड एज सोलराइजेशन. ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी इज इफ is very high. अगर light intensity is very high, so the rate of photosynthesis decreases. If light intensity is very high, so the rate of photosynthesis very high मतलब maximum photosynthesis से भी ज़्यादा हो गया अगर light का light intensity, तो क्या होगा, rate of photosynthesis decrease हो जाएगा. And this phenomena, because of very high light intensity, the rate of photosynthesis decreasing, this is termed as solarization. This is termed as solarization. ठीक है, अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के बाद भी फोटोसिंथेसिस, अगर आप सोच रहे हो कि इफ इट्स पॉसिबल, अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो मैक्सिमम से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा क्या, तो नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अगर मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी से भी ज्यादा आपने प्रोवाइड कर दिया, ओके, एक्सेसिव हाई लाइट इंटेंसिटी आ गई, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा. और इस फिनोमिना को कहा जाता है सोलराइजेशन. एंड व्हाई सोलराइजेशन इज कॉज, तो दो चीजें हैं यहाँ पे. एक जो मैंने आपको बताया, फोटो ऑक्सीडेशन होगा. क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द पिगमेंट्स. ओके, दूसरी क्या चीज हो सकती है, फोटो इनहिबिशन. फोटो इनहिबिशन. तो जो एक इंपॉर्टेंट पाथवे है, दैट इज फोटो सिस्टम 2, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर व्हाई फोटोसिंथेटिक रेट इज बीइंग डिक्रीज्ड, व्हाई सोलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो इनहिबिशन. बिकॉज आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी प्रोवाइड करी. ठीक है, सो लाइट कैन rarely be considered as a limiting factor, but it can be considered as a limiting factor if it's a dense forest. ठीक है, done. So this is your compensation point and this is your saturation point. इससे ज्यादा photosynthesis नहीं होगा. Okay, now moving ahead. So let's talk about the another factor, that is CO2. CO2 की बात कर लेते हैं. Okay. So CO2, that is the most limiting factor. CO2 is the most limiting factor. किस तरीके से limiting factor, let's see. तो आपको पता था कि जो CO2 compensation point है, प्रीवियस लेक्चर में आपने लिखा था CO2 कंपेंसेशन पॉइंट एंड सैचुरेशन पॉइंट ले लेते हैं. सैचुरेशन पॉइंट C3 में इट इज 25 to 100 पार्ट्स पर मिलियन. कितना है, 25
200 पार्ट्स में पर मिलियन एंड C4 में इट इज 0 to 10 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब सैचुरेशन पॉइंट C3 प्लांट्स में कितना है? सो इट इज मोर देन 450, मोर देन 450 पार्ट्स पर मिलियन, और यहां पे द सैचुरेशन पॉइंट इज 360 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो अब क्या होगा? इफ द CO2 proportion इज इंक्रीज्ड, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बिकॉज इसका सैचुरेशन पॉइंट कितना है? इसका सैचुरेशन पॉइंट 450 है, ओके, इसका 360 है। मतलब अगर CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, द मैक्सिमम बेनिफिट इज गोइंग टू बी टेकन बाय द C3 प्लांट्स, बिकॉज इसका सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है, इसका सैचुरेशन पॉइंट कम है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, इफ CO2 concentration increases, if CO2 concentration increases, photosynthetic activity of C3 plant increases। मतलब 450 से अगर बढ़ जाएगा तो 450 से आगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, बट कंपैरेटिवली अगर आप देख रहे हो और CO2 का प्रोपोर्शन आप बढ़ा रहे हो, तो उस केस में इसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट इज 450 ना, तो उस केस में इसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या होने वाली है? इसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसकी जो मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो 360 पे है। मतलब 360 तक ही ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, उसके बाद क्या होने लगेगा? फोटो ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा। यानी कि इसमें 450 तक फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके बाद व्हाट यू कॉल फोटो ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा। तो इसीलिए if CO2 concentration increases, photosynthetic activity of C3 plant increases, ठीक है, this is known as CO2 fertilization effect। This is known as CO2 fertilization CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। किसे कहा जाएगा CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट? कि जब CO2 का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यहां पे बढ़ जाएगी, दैट इज टर्म्ड एज द CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर। प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना, उसमें से ओनली 1% ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ओनली 1%। जितना भी पानी प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, 1% ऑफ absorbed water is used for photosynthesis, only 1%। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर में से जितना एब्जॉर्ब किया है उसमें से ओनली 1% इज गोइंग टू बी यूज्ड, ओके, फॉर फोटोसिंथेसिस। सो वाटर डज नॉट शो डायरेक्ट इफेक्ट on the rate of photosynthesis, but it affects indirectly। किस तरीके से इफेक्ट करेगा? causing water does not show direct effect, but indirectly affects
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो डायरेक्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या हो सकता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अब आप देखो, अगर स्टोमाटा बंद हो जाता है तो CO2 का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, CO2 नहीं ले पाएगा ना प्लांट, और प्लांट अगर CO2 नहीं ले पाएगा तो किसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। ओके, सो इफ प्लांट इज नॉट एबल टू टेक CO2 proportion is decreased while the O2 proportion increases, और जब O2 का proportion बढ़ जाएगा तो this may also cause what, this is going to cause photorespiration as well, photorespiration occurs as well। समझ में आ गया। सो वाटर डज नॉट, बिकॉज 1% ऑफ वाटर इज ओनली यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो डायरेक्ट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। दैट इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है, विल्टिंग ऑफ लीव्स है, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डज इट कॉज एन इफेक्ट। सो टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करें, C3 के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है दैट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। टू 45 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, इन बोथ द केसेस। अभी अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या इशू देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा, आगे बात करिए ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, फोटोसिंथेटिक रेट, लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, आपको फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, और वी कैन ऑल्सो पुट इट एज फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो स्टोमाटा बंद हो जाएंगे, जो बात मैंने अभी बताई। और स्टोमाटा अगर बंद हो गए तो CO2 का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, CO2 का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रुबिस्को की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी और ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द एंजाइम रुबिस्को increases, oxygen affinity of rubisco increases because
स्टोमाटा बंद हो जाने की वजह से CO2 का इंटेक नहीं हो पाएगा, और CO2 का इंटेक नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, C4 प्लांट्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री बढ़ाते हो तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला ना, क्योंकि यहाँ पे तो रुबिस्को जो है, रुबिस्को को आपने एक दूसरे कंपार्टमेंट में डाल रखा है। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है C4 प्लांट्स के पास। कौन सा एंजाइम है? दैट एंजाइम इज पेप्को, which has much higher affinity for CO2। ठीक है, तो यहां पे तो ऑक्सीजन अगर आ भी गया पेप्को के पास तो भी वो पेप्को बाइंड नहीं करने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे अगर नहीं हो सकता है, ये बात तो आपको पता है C4 प्लांट्स में। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो मैंने आपको एंजाइम बताया था विच वाज टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो एक एंजाइम है आपका, दैट इज फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेस, इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड तो अब क्या होगा? फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेस will stop working। क्योंकि अपन आगे लिखा था दिस एंजाइम इज टेम्परेचर सेंसिटिव। लो टेम्परेचर के लिए क्या है? सेंसिटिव है। तो हाई टेम्परेचर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हो गया फोटो रेस्पिरेशन वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, द टेम्परेचर गोज डाउन, तो क्या होगा? फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेस अपना फंक्शन करना छोड़ देगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो यहां पे C3 में हाई टेम्परेचर से प्रॉब्लम है और यहां पे लो टेम्परेचर से प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट था? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में तो आपको पता है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, O2, if amount of O2 increases, if amount of O2 increases तो क्या होगा? तो अगर O2 का अमाउंट बढ़ेगा तो रुबिस्को क्या करेगा? रुबिस्को वुड बाइंड विथ O2। रुबिस्को binds with O2 and forms 2 carbon compound। क्या बनाता है? 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है। पता है ना आपको 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? ठीक है, दैट मीन्स दिस इज कॉजिंग व्हाट? दिस इज कॉजिंग फोटो रेस्पिरेशन, कॉजिंग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन occurs। ठीक है, एंड photosynthetic rate decrease। ठीक है, so this effect, this phenomena is known as the Warburg effect। this is known as the Warburg effect। this is known as the Warburg effect and Warburg first studied this phenomena। ये जो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाने की वजह से जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय वॉरबर्ग, साइंटिस्ट का नाम है, एंड ही स्टडीड इट इन द प्लांट क्लोरेला। स्टडीड फोटो respiration in chlorella।
ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो अगर O2 का अमाउंट बढ़ेगा, ये तो आपके बाद में, अच्छा दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, दिस इज इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि C4 को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो C3 के केस की बात है ये। सो इफ अमाउंट ऑफ O2 इंक्रीजेस, Rubisco binds with O2 and forms 2 carbon compound, photorespiration occurs, that is photosynthetic rate decreases, and this phenomena is known as Warburg effect, as it was studied first time by Warburg in the chlorella plant. ठीक है, now so ये मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस कर लिया। अभी मैं दो नाम आपको देता हूं जो फोटोसिंथेटिक रेट को इनहिबिट करते हैं, हर्बिसाइड्स के नाम देता हूं। हर्बिसाइड्स आपको बताइए, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का काम करते केमिकल्स है, ओके। सो हर्बिसाइड्स inhibiting herbicide inhibiting photosynthesis, तो दो नाम देता हूं मैं आपको। वन इज DCMU, दैट इज डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, डाइक्लोरोफिनाइल फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, okay, which is also written as DCMU, that is dichlorophenyl dimethyl यूरिया। ये क्या करेगा? इट्स हर्बिसाइड, और ये क्या करेगा? फोटोसिंथेटिक रेट को रोक देगा, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। दिस इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, दिस आर हर्बिसाइड्स, दिस आर केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। और फोटोसिंथेसिस के कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करेगा? सो इट्स गोइंग टू इनहिबिट फोटोसिस्टम 2, इनहिबिट्स फोटोसिस्टम 2, ठीक है। दूसरा एक जो केमिकल है दैट इज पैराकोट एंड डाइकोट, पैराकोट एंड डाइकोट, ठीक है। पैराकोट एंड डाइकोट की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है? जैसा हर्बिसाइड्स जो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, एंड दे इनहिबिट फोटोसिंथेसिस का कौन सा पार्ट? सो दे इनहिबिट, ये फोटोसिस्टम 1 कर रहा था, सो दिस इनहिबिट्स फोटोसिस्टम, ये 2 कर रहा था, ये इनहिबिट करता है फोटोसिस्टम 1 को, ठीक है। सो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए उन हर्बिसाइड्स के जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। वन इज DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, it inhibits PS2 which is a part of photosynthesis, and another is total 1 2 total 3 paraquat and dicoat, they are also herbicides which inhibit photosystem 1, ठीक है। सो आज के लेक्चर में we have talked about the factors that affect photosynthesis, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और उससे रिलेटेड MCQ काफी पूछे जाते हैं। तो आपको फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे वो भी अच्छे से याद होने चाहिए। सो मेक श्योर जब आप लेक्चर को देखो तो अच्छे से वीडियो को गो थ्रू करना, अच्छे से सुनना, अच्छे से नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about more details regarding the chapter. ठीक है, चलो बाय बाय।